Hello and welcome to JK Rakhan. So friends, we are present here with a very good news for all those candidates who have completed their diploma in different engineering streams, because a latest update is coming from Hindustan Petroleum Corporation Limited, which is a Maharatna company related to the recruitment of the technician at Visakhapatnam refinery. So all those candidates who have completed their diploma in the engineering stream, this is a very good opportunity for those candidates, because this is an official notification which has been declared on the Hindustan Petroleum Corporation Limited, and online application form link has been activated. So friends, in this video we shall discuss in a very comprehensive manner what will be the eligibility criteria under the different vacancies, because different type of posts will be available under this recruitment, and what will be the age eligibility criteria, and we shall also discuss about the selection methodology, on which basis you will get selected under this recruitment, and then after friends we shall discuss that how to apply under this recruitment. So friends, all those candidates who are watching this video and who have completed their diploma in the engineering stream, this is a very good opportunity in order to join the Maharatna company, which is a Hindustan Petroleum Corporation Limited. So friends, you can see here on this official website of Hindustan Petroleum Corporation Limited, official notification is available here. So now we are going to switch our official website, which is jkrakhan.com. So you can see here we have updated the new recruitment of the Hindustan Petroleum Corporation Limited under the recruitments section. So you can go to this section, and the link of this official website of jkrakhan.com will be available in the description box of this video. And now friends, we are going to start our discussion with you in a bilingual way, so that all the candidates who are hailing from the different Indian states can understand the content in a very optimum manner. So friends, in order to download the official notification and in order to understand the complete details, which is important details mentioned in the official notification, you can come on this official website jkrakhan.com. Then after, you can see here recruitment for the diploma technicians 2022 at Visakhapatnam refinery is available here. You can go here for more information. You can click on this link. Then after friends, you can see here all the details, that is the important details, are mentioned on this official website. You can see here online application link has been activated, and the link has been activated from 22nd of April 2022, और इसकी लास्ट डेट आपकी रहेगी 21st of May 2022. तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स रहेंगे वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं. लिंक इसका एक्टिवेट हो चुका है. तो सबसे पहली पोस्ट फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑपरेशन टेक्नीशियंस की यहाँ पे रहेगी, जिसके लिए जिन स्टूडेंट्स ने अपना डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग में कर रखा है वो यहाँ पे फ्रेंड्स एलिजिबल रहेंगे. उसके बाद बॉयलर टेक्नीशियन के लिए आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए, और साथ में यहाँ पे डिज़ायरेबल रहेगा आपका फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट. इसके साथ में आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा आपने किया होना चाहिए. उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी मेंटेनेंस टेक्नीशियन मैकेनिकल में आपकी यहाँ पे पोस्ट रहेगी. इसमें आपका डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए. उसके बाद मेंटेनेंस आपका टेक्नीशियन यहाँ पे इलेक्ट्रिकल के अंडर रहेगा. इसमें आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होनी चाहिए. इंस्ट्रूमेंटेशन में आपका इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर टेलीकम्युनिकेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपकी डिप्लोमा आपने किया होना चाहिए. उसके बाद लैब एनालिस्ट, इसमें जिन स्टूडेंट्स ने अपनी बीएससी भी कर रखी है और बीएससी में उनके मिनिमम 60% मार्क्स उन्होंने ले रखे हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी जो बीएससी है उसमें आपकी केमिस्ट्री आपने पढ़ी होनी चाहिए, और मिनिमम आपकी जो 60% मार्क्स आपने लिए होने चाहिए. और अगर आपकी एमएससी है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एमएससी आपकी केमिस्ट्री में फर्स्ट क्लास पास होनी चाहिए 60% के साथ. उसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं जूनियर फायर एंड सेफ्टी इंस्पेक्टर. इसमें अगर आपने सिंपल ग्रेजुएशन साइंस बैकग्राउंड से कर रखी है 40% आपके पास मार्क्स होने चाहिए, और वैलिड आपके पास हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए. आप इसके अंदर फॉर्म का अप्लाई कर सकते हो. तो ये फ्रेंड्स आपका एजुकेशन का क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रहेगा, जो हमने यहाँ पे अच्छे तरीके से डिस्कस किया. और यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट नोट के अंदर पढ़ सकते हैं कैंडिडेट्स पोजेसिंग हायर क्वालिफिकेशन सच एज डिग्री इन इंजीनियरिंग या फिर AMI और नॉट एलिजिबल फॉर कंसंट्रेशन एंड नीड नॉट अप्लाई. जिन स्टूडेंट्स ने अपनी डिग्री कर रखी है डिप्लोमे के बाद, उनकी डिग्री यहाँ पे कंसिडरेबल नहीं रहेगी. डिग्री होल्डर यहाँ पे एलिजिबल नहीं रहेंगे इसके अंदर अप्लाई करने के लिए. Then after friends, you can see here the minimum age criteria. Your minimum age should be 18 years and your maximum age should be 27 years. और कौन सी डेट तक आपकी ये जो मिनिमम और मैक्सिमम एज काउंट की जाएगी? 1st of April 2022.
एंड फ्रेंड्स जो स्टूडेंट्स की रिजर्वेशन कैटेगरी है, फॉर एग्जांपल SC ST OBC या फिर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन या फिर आपके दिव्यांग कैंडिडेट्स जो रहेंगे, पर्टिकुलरली दिव्यांग SC ST और OBC, इनको यहाँ पे फ्रेंड्स रिजर्वेशन रहेगी पोस्ट में, यानी कि ऊपर यहाँ पे जो आपकी डिफरेंट पोस्ट रहेंगी जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन का आपको लिंक दिया जाएगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन रहेगी कैटेगरी वाइज। सिलेक्शन का प्रोसेस आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स। जब आप इसके अंडर फॉर्म को अप्लाई करते हैं, आपका सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, यानी कि आपका कंप्यूटर पे एक एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा जिसमें आपका जनरल एप्टीट्यूड भी रहेगा और आपका टेक्निकल बैकग्राउंड से, प्रोफेशनल नॉलेज से भी आपके क्वेश्चन रहेंगे। 2 पार्ट आपके यहाँ पे रहेंगे, एप्टीट्यूड टेस्ट और आपका टेक्निकल नॉलेज। उसके बाद फ्रेंड्स आपका यहाँ पे जो स्टूडेंट्स CBT क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके बाद उन स्टूडेंट्स का स्किल टेस्ट कंडक्ट होगा। स्किल टेस्ट जैसे आपको क्वालिफाई करना है, इसमें आपको कोई मार्क्स नहीं रहेंगे, जो मार्क्स आपने CBT में ले रखे हैं उसके बेसिस पे फ्रेंड्स आपकी यहाँ पे सिलेक्शन रहेगी। उसके बाद जब आपका स्किल टेस्ट हो जाता है, उसके बाद जो फिजिकल और मेडिकल फिटनेस है, जो HPCL के स्टैंडर्ड्स हैं, उसके बेसिस पे आपकी फिटनेस चेक की जाएगी। तो ये फ्रेंड्स आपका सिलेक्शन का क्राइटेरिया एग्जामिनेशन से लेके लास्ट मेडिकल फिटनेस तक यहाँ पे रहेगा। उसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पे सैलरी देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी यहाँ पे आपकी सैलरी रहेगी, मिनिमम 55,000 पर मंथ यहाँ पे CTC आपका यहाँ पे रहने वाला है। और पे स्केल भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपका रहेगा। और साथ में आपको यहाँ पे अलाउंसेस भी रहेंगे, यहाँ पे आप कंप्लीट अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपकी एक कंडीशन रहेगी, जो स्टूडेंट्स यहाँ पे सेलेक्ट होते हैं उनका यहाँ पे प्रोबेशन टाइम पीरियड रहेगा 9 महीने का, और ये प्रोबेशन टाइम पीरियड कंप्लीट करने के बाद आपकी सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस देखते हुए आपको यहाँ पे एब्जॉर्ब कर दिया जाएगा सर्विस में, आपकी सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ आपके जो सर्टिफिकेट्स रहेंगे वो कंप्लीट होने के बाद। तो ये फ्रेंड्स आपका कंप्लीट क्राइटेरिया रहेगा। ऑनलाइन फॉर्म इसके फिल होना शुरू हो चुके हैं, लिंक एक्टिवेट हो चुका है, जैसा कि हमने डिस्कस किया। 21 मई 2022 को आपकी लास्ट डेट रहेगी। और यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, इसके अंडर फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपकी जो फीस है वो है यहाँ पे 590 रुपीज़ रहेगी। और साथ में जो चार्जेस आपके एक्स्ट्रा रहते हैं वो आपके यहाँ पे इंक्लूडिंग 590 रुपीज़ में नहीं रहेंगे। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स SC ST या फिर दिव्यांग कैंडिडेट हैं, उनको यहाँ पे कोई भी फीस नहीं पे करनी है इसके अंडर फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, उनके लिए यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। तो जो स्टूडेंट्स अनरिजर्व्ड है, OBC हैं, नॉन क्रीमी लेयर वाले, यहाँ पे उनको भी यहाँ पे फीस देनी है, EWS वालों को भी फीस देनी है। सिर्फ SC ST और दिव्यांग कैंडिडेट्स को यहाँ पे फीस नहीं देनी है इसके अंडर फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो फ्रेंड्स इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए आप डायरेक्टली इस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल में इसकी डायरेक्टली ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड होके आ जाएगी। और इसके अंडर फ्रेंड्स डायरेक्टली अप्लाई करने के लिए डायरेक्टली आपको यहाँ पे लिंक पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करते हो, यहाँ पे आपकी HPCL की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स सबसे पहले आपको यहाँ पे करनी है रजिस्ट्रेशन। अपना नाम कंप्लीट यहाँ पे डालोगे, फुल नेम, और उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी बेसिक डिटेल्स मेंशन करनी है, अपनी मेल आईडी वेरीफाई करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी रजिस्ट्रेशन करनी है, बेसिक रजिस्ट्रेशन। जब आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाती है, आपकी यूज़र आईडी और पासवर्ड आपकी मेल आईडी पे भेज दिया जाएगा। वहाँ से आप डायरेक्टली अपने रिमेनिंग फॉर्म जो आपका रहेगा उसमें आपको अपनी बेसिक एजुकेशनल डिटेल्स फिलअप करनी है, फ़ोटो सिग्नेचर को अपलोड करना है। वो आप कंप्लीट अच्छे तरीके से, मैं उम्मीद करता हूँ, कंप्लीट कर लोगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है फ़ोटो सिग्नेचर रिसाइज करने के लिए, आप डायरेक्टली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ पे हमने लिंक दिया हुआ है कि आपने फ़ोटो सिग्नेचर को भी कैसे रिसाइज करना है। अगर आपको नहीं पता चलता है, यू कैन कंसल्ट दोज वीडियो, यू विल डेफिनेटली गेट द इनपुट फ्रॉम दीज वीडियोज़ विच आर अवेलेबल इन द description box of this video. So friends, if you have any doubt, you can put your query in the comment section. We will definitely get back to you within a possible time. And once again, we would like to inform you to all the candidates who have completed their diploma in the engineering stream. This is a very good opportunity in order to join Hindustan Petroleum Corporation Limited, which is a Maharatna company, and it is a very brilliant and good opportunity for these candidates. Thank you friends. Have a great day ahead.